ایک مردہ سر کی حکایت۔ ساجد رشید۔ 5:40 کی ویرار فاسٹ لوکل ٹرین۔ اس نے سر اٹھا کر چرچ گیٹ اسٹیشن کا انڈیکیٹر دیکھا اور بائیں کندھے پر لٹکے ریگزین کے بھاری سرخ بیگ کو دائیں کندھے پر منتقل کیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ اس کا رخ پلیٹ فارم نمبر 3 کی طرف تھا۔ شام 5:40 کی فاسٹ لوکل ٹرین میں سوار ہونے کے لیے لوگ پلیٹ فارم کی طرف دوڑ رہے تھے۔ دفتروں میں کام کرنے والی عورتیں اپنے کندھوں پر ٹنگے پرس اور بیگ کے بوجھ کو سنبھالے دھکے کھاتی اور دھکے دیتی لیڈیز کمپارٹمنٹ کی طرف بھاگ رہی تھیں، گویا یہ آخری ٹرین ہو۔ وہ صبح ہی سے مصروف تھا اور اس وقت کافی تھک گیا تھا، بس اپنی مطلوبہ ٹرین کی کھڑکی والی سیٹ پر بیٹھ کر سارے دن کی ہی نہیں زندگی بھر کی تھکن اتارنا چاہتا تھا۔ فرسٹ کلاس کے ڈبے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ایک خالی سیٹ پر پڑی۔ وہ بیگ کو سنبھالتا ہوا سیٹ کی طرف بڑھا ہی تھا کہ کانوں میں ہیڈ فون لگائے MP3 سننے میں مگن نوجوان نے لپک کر اس پر قبضہ کر لیا۔ اس نے حقارت سے اس کی طرف دیکھا۔ آخر کتنی دیر بیٹھے گا اس سیٹ پر؟ اب تمام سیٹیں بھر چکی تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے بیگ کو اچک کر سامان رکھنے والے ریک پر رکھ دیا اور راہداری میں آ کر سر پر جھولتے ہینڈل کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹرین ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ چل پڑی۔ ٹرین کی رفتار کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن نے بھی رفتار پکڑ لی۔ دھڑ 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 دھڑ، چرنی روڈ، گرانٹ روڈ، دھڑ 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 دھڑ، ممبئی سینٹرل، مہالکشمی، دادر، دھڑ 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 دھڑ۔ لوکل دوڑ رہی تھی، لوگ اتر رہے تھے، چڑھ رہے تھے اور ڈربے میں بھری مرغیوں کی طرح بھرتے جا رہے تھے۔ اس کے باوجود ان کے درمیان تاش کی بازی یا گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ یہ روزانہ کے مسافر تھے جو عرصے سے ایک مخصوص لوکل ٹرین میں ایک ہی ڈبے میں 1.5-2 گھنٹے کی مسافت کی بوریت کو کم کرنے کے لیے تاش کھیلتے یا ہنسی مذاق کرتے۔ باندرا اسٹیشن گزر چکا تھا۔ بھیڑ نے اسے دھکیل کر 2 سیٹوں کے درمیان کی جگہ میں لا کھڑا کیا تھا۔ اب وہ اس ریک کے کافی قریب کھڑا تھا جس پر دوسرے سامانوں کے ساتھ اس کا سرخ بیگ بھی رکھا ہوا تھا۔ دفتن سیل فون بج اٹھا۔ اس نے فون کو کان سے لگایا اور ٹرین اور مسافروں کے شور میں چیخ چیخ کر کچھ کہا اور گھڑی میں وقت دیکھ کر کال کو منقطع کر دیا۔ اس نے ڈبے کا جائزہ لیا۔ اس کی نظریں کھڑکی والی سیٹ پر بیٹھے تھل تھل جسم والے آدمی پر ٹھہر گئیں جو گٹکا چباتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ دھڑ 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 سانتا کروز گزر رہا تھا۔ اگلا اسٹیشن اندھیری تھا۔ اس نے جلدی سے گھڑی دیکھی اور سیل فون پر نمبر ملا ہی رہا تھا کہ اس کے دماغ میں بہت زور کا دھماکہ ہوا۔ ڈبے میں بیٹھے اور کھڑے لوگ کسی فوٹو فریم کی طرح 2-3 بار گھوم گئے۔ اس کا جسم پوری قوت سے اچھل کر فرش پر گرنے تک گوشت کے چھوٹے بڑے لوتھڑوں کی شکل میں بکھر گیا تھا اور جسم سے جدا سر کسی گیند کی طرح چھت سے ٹکرا کر لہو کے چھینٹے اڑاتا ہوا لوہے کے فرش پر گر کر اچھلا تھا اور لڑھکتا ہوا ایک سیٹ کے ڈھانچے کے پائے سے ٹکرا کر ہلکے سے ارتعاش کے بعد تھم گیا تھا۔ پیٹ کسی غبارے کی طرح ایک دم سے پھول کر پھٹ پڑا تھا اور پھر ایک بہت لمبی سیٹی بجی تھی جیسے پریشر کوکر سے بھاپ خارج ہو رہی ہو۔ منٹ کے 1000ویں سیکنڈ میں اس کی آنکھوں نے دماغ تک اس منظر کو منتقل کیا۔ لوہے کی مضبوط چادر کی چھت ایسے ادھڑ گئی تھی جیسے اس پر کوئی عظیم الجثہ فولادی گھونسا پوری قوت سے پڑا ہو۔ چھت پر ٹنگے پنکھے ٹیڑھے ہو کر وائروں سے لٹک گئے تھے۔ کھڑکی کی جگہ بہت بڑا دروازہ سا بن گیا تھا۔ قریب ہی ایک خون میں سنا ہوا جوتا پڑا تھا۔ ایک جیبی پرس کھلا پڑا تھا جس میں سے کچھ نوٹ اور پونی ٹیل والی ایک مسکراتی بچی جھانک رہی تھی جس کی پیشانی اور ہونٹوں پر خون کے چھینٹے جم گئے تھے۔ کچھ فاصلے پر ایک مٹھی کھلی پڑی تھی جس میں گٹکے کا پھٹا ہوا پاؤچ دبا ہوا تھا۔ MP3 سننے والے نوجوان کے کانوں سے خون بہہ کر جبڑوں تک آ گیا تھا اور وہ پھیلی ہوئی آنکھوں سے خلا میں گھور رہا تھا۔ پیٹ کے نیچے خون میں لت پت آنتوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ دہشت، صدمے اور وحشت بھری چیخیں دائرہ بناتی گونج کی طرح پھیلتی جا رہی تھی۔ چپلوں، سینڈلوں اور بھاری بوٹوں والے پیر خون کے تھکوں کو رونتے ہوئے، کٹے پھٹے جسموں کو لانگتے ہوئے لوہے کے گندے فرش پر چل رہے تھے۔ بے شمار بازو بڑی پھرتی سے چیتھڑا چیتھڑا جسموں، کٹے پھٹے اعضاء اور لاشوں کو اسٹریچر پر اور انسانی گوشت کے لوتھڑوں کو چادروں میں سمیٹ رہے تھے۔ پھٹی پھٹی منجمد آنکھوں نے یہ سارا منظر دیکھا اور سیکنڈ کے 1000ویں لمحے میں
اس کے مردہ ہونٹوں پر ایک ایسی اطمینان بخش سرد مسکراہٹ کھنچ گئی جو کسی غیر یقینی کام کو انجام دینے کے بعد از خود چہرے پر آ جاتی ہے۔ لاوارث سر کا معمہ۔ سڑتے انسانی گوشت اور خون کی بدبو تھی جو اس بے حد تبیز تاریکی میں دم گھونٹ دینے والی گیس کی طرح بھری ہوئی تھی۔ خون تک کو منجمد کر دینے والے اس سرد اندھیرے کے بھیتر وقت بھی جیسے منجمد ہو گیا تھا۔ یہ اندھیرا قبر کی تاریکی کی طرح خوفناک تھا۔ اس نے وقت کا میزان لگانا چاہا، شاید وہ سینکڑوں ہزاروں برسوں سے قبر کی اس تاریکی میں یوم حساب کا انتظار کر رہا تھا۔ گھر گھراہٹ کے ساتھ گھپ اندھیرے میں مستطیل دودھیا روشنی ہو گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ احتساب کا وقت آ پہنچا ہے۔ کچھ خاکی وردی پوش سامنے کھڑے دکھائی دیے۔ ان کے ہاتھوں پر سفید دستانے چڑھے ہوئے تھے اور منہ پر رومال بندھے تھے۔ وردی اور کیپ سے افسر معلوم ہونے والے پختہ عمر کے آدمی نے رم لیس اینک پہنی ہوئی تھی۔ ویری اسٹرینج، 3 ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے انسپکٹر چوہان، کسی نے اب تک کلیم نہیں کیا؟ اینک والے افسر نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوتے ہوئے کہا۔ اس کی انگلیوں کی گرفت لوہے کے شکنجے کی طرح مضبوط تھی۔ وہ غور سے اس مردہ سر کو دیکھ رہا تھا جو 3 ہفتوں سے 4 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت پر محفوظ رکھنے کے کیمیاوی عمل کی وجہ سے سوج کر عام سروں سے کچھ بڑا ہو گیا تھا۔ اس کے جسم کے پرخچے اس طرح اڑے تھے کہ سر کے علاوہ بدن کا کوئی عضو سلامت نہیں بچا تھا۔ جسم سے علیحدہ ہوتے ہی بھیجے میں سے سارا خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ اس کی دونوں ساکت آنکھیں کھلی ہوئی تھیں جو بالکل سفید تھیں۔ جبڑا ٹوٹ کر ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ پھولی ہوئی خفیف سی ترچھی ناک، موٹے ہونٹ اور کشادہ پیشانی والے اس مردہ چہرے کے اوپری ہونٹ کے گوشے میں کسی پرانے زخم کا ایک گہرا نشان تھا۔ کتنی ڈیڈ باڈیز ہوں گی؟ اینک والے افسر نے پوچھا۔ اب اس کٹے ہوئے سر کے علاوہ صرف ایک انکلیمڈ باڈی رہ گئی ہے، باقی سب کے وارث آ کر لے گئے، انسپکٹر چوہان نے جواب دیا۔ مرنے والوں کے وارث کو گورنمنٹ نے 5 لاکھ روپے معاوضہ دینے کا اعلان کیا ہے، اینک والے افسر نے اس پر نظریں جمائے ہوئے کہا۔ اس کے بعد تو کسی نہ کسی کو کلیم کرنا ہی چاہیے تھا۔ سر، ایک عورت اپنے لنگڑے پتی کو تلاش کر رہی ہے۔ وہ روز صبح اپنے بیٹے کو گود میں لے کر پہنچ جاتی ہے۔ اس کھوپڑی کو دکھایا تھا اس کو؟ ہاں، وہ بتا رہی تھی کہ اس کا پتی کالا تھا۔ یہ تو گورا رہا ہوگا۔ میں نے اس کو وہ اکلوتی انکلیمڈ باڈی کو بھی دکھایا تھا، لیکن اس کا پورا شریر اتنی بری طرح جل گیا ہے کہ شناخت پاسبل نہیں ہے۔ جب تک اس سر کی شناخت نہیں ہوتی ہمیں اس کو سرکشت رکھنا ہوگا۔ سر، میں نے ایک عجیب بات نوٹ کی ہے، انسپکٹر چوہان نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ کہو۔ پولیس افسر نے اینک کے پیچھے سے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ سر، اسے غور سے دیکھیے۔ اس نے مردہ سر کے زرد چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ آخری شنوں میں مسکرا رہا تھا۔ افسر نے پہلے تو اپنے نوجوان ماتحت انسپکٹر کو دیکھا جسے وہ سر اب بھی مسکراتا ہوا لگ رہا تھا۔ پولیس افسر نے غور سے مردہ سر کو دیکھا۔ اس کے ہونٹ نیم وا تھے، دانت بھنچے ہوئے تھے جن پر خون جم کر سیاہ ہو رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے ہونٹ اپنی فطری ساخت سے کچھ زیادہ بھنچے ہوئے ہیں، جسے انسپکٹر چوہان مسکراہٹ سمجھ رہا ہے۔ واٹ ربش، اینک والے افسر نے سر جھٹک کر کہا۔ مرنے والا آخری شنوں میں بھی مسکرا سکتا ہے، میں یہ پہلی بار سن رہا ہوں۔ ہر لمحہ زندگی، ہر سانس میں موت۔ وہ کانپور کے دیہات کا باشندہ تھا۔ بچپن میں ہی والدین گزر گئے تھے۔ 5 بھائی بہنوں میں وہ سب سے چھوٹا تھا۔ بڑے بھائی صاحب عمر میں 14-15 سال بڑے تھے اور ایک شوگر مل میں اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے پچھلے سال ریٹائر ہوئے تھے۔ گھر کی کفالت انہوں نے ہی کی تھی۔ خاندان میں ان کا درجہ والد کی طرح اس لیے بھی تھا کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے شادی کافی تاخیر سے کی تھی۔ ان کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ اپنے بھائی بہنوں ہی کو اپنی اولاد مانتے تھے اور بھابھی کی محبت بھی کچھ کم نہ تھی۔ وہ بچپن ہی سے ذہین تھا، لہٰذا اس کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے بھائی صاحب نے اسے کانپور IIT میں داخلہ دلا دیا تھا، جہاں سے اس نے کمپیوٹر سائنس اینڈ انجینئرنگ میں ٹاپ کیا تھا، اور ممبئی کی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب حاصل کرنے میں اسے کوئی خاص دشواری نہیں ہوئی تھی۔ اس کی اس ترقی سے بھائی صاحب بے حد خوش تھے، اور جب بھی ان سے فون پر باتیں ہوتی وہ اسے ایمانداری اور محنت سے کام کرنے کی نصیحت کرتے ہوئے اپنی مثال ضرور دیتے کہ کس طرح انہوں نے انتھک محنت اور ایمانداری سے فیکٹری میں مینجمنٹ کا اعتماد حاصل کیا ہے۔ بھابھی سے جب بات ہوتی تو وہ اسے شہر کی فضولیات سے دور رہنے کی تلقین کرتی اور اس سے یہ پوچھنا نہیں بھولتی تھی کہ اس نے اب تک کوئی لڑکی پسند کی یا نہیں۔ جاب پر کنفرم ہونے کے بعد اسے لگا تھا کہ بھائی صاحب نے
उसे अपनी जरूरतों की कुर्बानी देकर जिन उम्मीदों के साथ आला तालीम दिलाई है वो उन पर खरा उतरने की कोशिश करेगा। वो भाई साहब की नसीहत के मुताबिक मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहा था कि एक दिन उसकी जिंदगी में एक शख्स किसी हादसे की तरह दाखिल हुआ और जिंदगी की मानवियत ही बदल गई। ख्वाबनाक आंखों और गोरी रंगत वाले इस आदमी पर भूरी झबरी दाढ़ी खूब फपती थी। उसके दराज कद पर घुटनों से लंबा कमीज नुमा कुर्ता और टखनों से ऊंची शलवार उसकी शख्सियत को कुछ तीखा बनाती थी। उसने मकसद हयात और मौत की कदर कीमत पर इतने सारे सवालात खड़े कर दिए थे कि उसे अपने वजूद में वही तब्दीली महसूस हुई थी जो जलजले के झटके के बाद मुतासिरा जमीन ही नहीं पूरी आबादी में आ जाती है। दोस्तों की एक महफिल में उससे मुलाकात हुई थी। पहली ही मुलाकात में उसने महसूस किया था कि उसकी बड़ी बड़ी आंखों में देर तक देखना मुमकिन नहीं था। उसकी शख्सियत का सबसे बड़ा वस्फ ये था कि वो बेहद दुरुस्त और तल्ख बात भी पुरसुकून अंदाज में कहता था। बहस के दौरान उसकी आवाज कभी बुलंद नहीं होती थी और न ही गुस्सा जाहिर होता। किसी अजीम मकसद के हुसूल से आरी जिंदगी और किसी अजीम मकसद की तकमील से लाताल्लुक मौत सिर्फ जानवरों का मुकद्दर है। ऐसे जानवर इंसानों के जून में भी रहते हैं। इंसान के जून में इंसान बनकर रहने की सबसे पहली शर्त है कि अपनी कौम को एक कुंबा समझो और उन्हें तहफ्फुज और इंसाफ देने के लिए जान देने और जान लेने से भी गुरेज मत करो। क्या आप पर कभी ऐसा वक्त आया है? किसी ने उससे पूछा था। उसने पहले तो गौर से सवाल करने वाले को देखा और फिर उसने अपने दाएं पैर को लंबा करके अपने पायजामे के पांचे को घुटनों तक खींच दिया और सब हैरत से उसके पैर को देखते रह गए। घुटने से नीचे स्टील और फाइबर का बना हुआ एक बेजान पैर था। सभी को हैरत हुई थी कि उसकी चाल से कभी पता नहीं चलता था कि उसका निस्फ पैर कटा हुआ है। उसने एक सिगरेट सुलगाई और रूथमैन के अमरीकी धुएं की महक कमरे में भर गई थी। मैं हर एक लम्हे के बाद दूसरे लम्हे को नई जिंदगी मानता हूँ, यानी मैं अपनी हर सांस में मौत को महसूस करता हूँ। इसलिए मौत को गले लगाने के लिए हर लम्हा तैयार रहता हूँ। याद रखो, मौत से सिर्फ बुज़दिल डरते हैं। वो मबहूत सा उस खूबसूरत चेहरे और बुलंद हौसले वाले आदमी को देखता रह गया था। क्या शय है जो तुम्हारे लिए जिंदगी को बहुत कीमती बनाती है? उसने बेहद मीठी मुस्कुराहट के साथ सबके चेहरों को बारी बारी देखते हुए पूछा था। फिर कुछ तवक्कुफ से खुद ही बोला था, माली आसूदगी, जिनसी तलज्जुज और खूनी रिश्ते, है ना? क्या ये तमाम चीजें एक साथ किसी भी आदमी को हासिल हो जाती हैं? और अगर हो भी जाएं तो उनका वक्फा कितना होता है? 5, 25 या 50 साल? इससे ज्यादा तो नहीं। दुनियावी रिश्ते फरेब हैं। रिश्तेदार जिंदगी में मोहब्बत का दम भरते हैं और मौत के बाद फरामोश कर देते हैं। कोई किसी के लिए जीता है न किसी के लिए मरता है। लेकिन जरा तसव्वुर करें उस जिंदगी का जो कभी खत्म ना हो, जिसमें वक्त का कोई तसव्वुर ही ना हो और जिसमें मालो जिन्स की ऐसी फरावानी हो कि पुरजोश जवानी जिस्म में ठहर जाए और तलज्जुज का एक लम्हा सदियों पर मुहित हो जाए, उम्र का एक सेकंड सैकड़ों साल पर फैल जाए और जिंदगी कभी खत्म ही ना हो। तो बताएं, ये चंद बरसों की जिंदगी अहम है या वो जिंदगी जिसकी उम्र लामहदूद है? वो कह रहा था और सबों की आंखों में वो चमक थी जो जिंदगी से मावरा जिंदगी के तसव्वुर ने पैदा कर दी थी। क्या जुल्म को बर्दाश्त करना जालिम को कुव्वत देना नहीं है? क्या यह बदतरीन बुज़दिली नहीं है? क्या हमें नहीं कहा गया है कि जियो तो गाजी की तरह और मरो तो शहीद की तरह? उसने ठहर कर एक एक के चेहरे का जायजा लेने के बाद कहा था, बजोर कुव्वत मजलूम का दिफा जालिम की फना है। यह इंतकाम नहीं, हुसूल इंसाफ है। वो धीमे लहजे में रवानी के साथ बोल रहा था, लेकिन उसका चेहरा गर्म तांबे की तरह तमतमा उठा था। उसके हर लफ्ज में बेशुमार नेज़े थे जो उसके दिमाग के एक एक खुलिये में पेवस्त हो गए थे। उसने पहली बार महसूस किया था कि वो बेशुमार इंसानों की तरह एक बेमकसद जिंदगी के खूंटे से बंधा हुआ है जिसके मरकज में सिर्फ उसका अपना खानदान है, जबकि दुनिया के गोशे गोशे में मौजूद उसकी कौम का हर फर्द उसके वसी तरीन कुंबे का हिस्सा है। अब वो अखबार या न्यूज चैनल खोलता तो रोज सिसकते बच्चे, मातम कुना औरतें और जख्मों से चूर खौफजदा मर्द उसके सामने आ खड़े होते। रात में जब वो कंप्यूटर पर नेट सर्फिंग करता तो दुनिया के पता नहीं किन किन गोशों से दरीदा जिस्मों और मजरूह रूहों वाले हियोले कंप्यूटर के स्क्रीन से निकलकर उसके इतराफ में दायरा बनाकर खड़े हो जाते, बस खामोश और सवाली नजरों से उसकी तरफ बेचारगी से तकते रहते। उनकी आंखों में इतनी बेबसी होती कि वो घबराकर आंखें बंद कर लेता। तब वो रोने लगते, दबी दबी हिचकियों की दर्दनाक आवाजों से इस तरह रोते कि उसका रुआं रुआं थर्रा उठता।
उसने अपने फैमिली डॉक्टर से रुजू किया, जिसने सारा माजरा सुनने के बाद उसे समझाया कि वो जिन हियोलों को देखता है उनका कोई वजूद नहीं है, वो उसके तखय्युल का अक्स है, जिसे हेलुसिनेशन कहते हैं। डॉक्टर ने मशवरा दिया कि वो किसी भी गमनाक वाक़े या सानहे पर ज्यादा गौर व फिक्र न करे और दिमाग को पुरसुकून रखने के लिए चंद ट्रैंकुलाइजर तजवीज की। वो जब तक ट्रैंकुलाइजर लेता रहा उसे किसी भी किस्म का हेलुसिनेशन ना होता, लेकिन जिस रोज दवा लेने में गफलत हो जाती, वही लहूलुहान हियोले फिर उसके कंप्यूटर से निकलकर उसके सामने आकर सवाली नजरों से उसे घूरते रहते, जैसे पूछ रहे हो कि तुमने हमारे लिए क्या किया। फिर वो दबी दबी आवाज में रोने लगते। रफ्ता रफ्ता उनकी आहो बुका से कमरे के दरो दीवार एहसास जुर्म के मारे किसी शख्स की तरह लरजने लगते। बच्चे की मुट्ठी में रुपया। 100 साल पुरानी पुलिस कमिश्नरेट की काले पत्थरों से बनी इमारत की पहली मंजिल पर वाक़े ATS एंटी टेररिज्म स्क्वाड के दफ्तरों में एक दुबली सांवली औरत अपनी गोद में एक सुर में रिरियाने वाले बच्चे को चुप कराती खड़ी थी। औरत के बुशरे से लगता था जैसे उसने कई दिनों से बालों में तेल कंघा नहीं किया है। अलबत्ता उसके माथे की गोल बिंदी और मांग का सिंदूर जरूर ताजा दिखाई देता था। दफ्तर के सिपाही ने 3 घंटे के दरमियान शायद 20 बार उससे कहा था कि वो चली जाए, साहब बाहर जांच में गए हैं, आने में बहुत देर हो जाएगी। औरत चुपचाप सुन लेती, ना कोई जवाब देती और ना ही अपनी जगह से हिलती। कुछ ही देर बाद इंस्पेक्टर चौहान काला चश्मा पहने तेज तेज कदमों से राहदारी अबूर करके अपने दफ्तर के सामने पहुंचा तो उस औरत को देखकर ठिठक गया और फिर अपने कैबिन में चला गया। इंस्पेक्टर के पीछे पीछे एक काला कलूटा अधेड़ उम्र का आदमी भी उसी केबिन में दाखिल हो गया। उसका जबड़ा पान और सुपारी को चबाने की मशक्कत में मुतवातिर हिल रहा था। औरत पुरुम्मीद नजरों से उनके पीछे हिलते खुदकार दरवाजे को देखती रही। बाहर की हवा क्या बोलती है काला बाबू? इंस्पेक्टर चौहान ने सिगरेट सुलगाकर पैकेट उस आदमी की तरफ बढ़ाते हुए पूछा। एकदम सन्नाटा है साहब। काला बाबू ने भी सिगरेट सुलगा ली। आंख और कान खुले रखो, 3 हफ्ते हो रहे हैं, ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है, कहकर इंस्पेक्टर ने घंटी बजाकर सिपाही को तलब करके बाहर खड़ी औरत को अंदर भेजने के लिए कहा। बच्चे को कमर पर लिए औरत कैबिन में दाखिल हुई। बच्चा आप भी री री किए जा रहा था। कुछ पता चला तुम्हारे पति का? इंस्पेक्टर ने पूछा। ये तो आप ये बताएंगे हुजूर, औरत ने लजाजत से कहा। देखो, एक ही जला हुआ मुर्दा रह गया है जो तुमको दिखाया था। तुम बोलती हो कि तुम्हारा पति लंगड़ा था और काला भी था, वो लावारिस सर भी तुम्हारे पति का नहीं है। इंस्पेक्टर ने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा। मुझे लगता है तुम्हारा पति ब्लास्ट में उड़ नहीं, ऐसा मत बोलो साहब। वो नफी में सर हिलाकर रो पड़ी। नाश्ता किया? इंस्पेक्टर ने औरत से पूछा। वो चुप इंस्पेक्टर के चेहरे को तकती रही। चाय बिस्किट लोगी? नहीं साहब, कुछ नहीं, मेरा पति। वो फिर फूट फूट कर रो पड़ी। इंस्पेक्टर ने काला चश्मा निकालकर मेज पर रखा और एक फाइल खोलकर पढ़ने लगा। काला बाबू गौर से उस औरत को देख रहा था। चुप हो जा, कहकर उसने औरत से अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। उसका शौहर अंधेरी स्टेशन पर चीन की बनी हुई सस्ती अशिया फरोख्त करता था। धमाके के बाद से वो घर नहीं लौटा। उसकी बूढ़ी बहरी माँ रोज अपने बेटे को याद करके रोती रहती है। उसे समझाना और चुप कराना मुहाल हो जाता है कि वो बिल्कुल भी सुन नहीं सकती। राशन कार्ड है तुम्हारे पास? काला बाबू ने उसकी रो रो कर सुर्ख हो जाने वाली आंखों में देखते हुए पूछा। है ना भैया, उसने जल्दी से कहा। सरकार ने कुल मिलाकर 5 लाख रुपया मुआवजे में देने का ऐलान किया है ना? अगर तुम्हारे आदमी का कुछ नहीं पता चलता है तो तुमको भी ये पैसा मिल। नहीं भैया नहीं, हमको हमारा आदमी चाहिए। उसकी हिचकियां बंद गईं। माँ को रोता देखकर बच्चा भी जोर जोर से रोने लगा। इंस्पेक्टर ने फाइल पर से नजरें हटाकर सर उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर फाइल में झांकने लगा। बाबू बहुत देर तक औरत को हकीकत से सामना करने के लिए तैयार करता रहा। वो हिचक कर बस रोती रही। 2 रोज के बाद में आना, इंस्पेक्टर ने फाइल पर से नजरें हटाए बगैर कहा। औरत आंखों में आंसू लिए कुछ देर खड़ी रही, फिर नमस्ते कहकर तकरीबन घिसटती हुई बाहर चली गई। काला बाबू ने इंस्पेक्टर की तरफ झुककर धीरे से कहा, मैं अभी आया साहब, और औरत के पीछे वो भी बाहर आ गया। औरत छोटे छोटे कदम उठाती हुई लंबी सी राहदारी में चली जा रही थी। उसकी गोद में उसका बच्चा अब भी रोए जा रहा था। शायद वो भूखा था। काला बाबू तेज कदमों से औरत के करीब जा पहुंचा। उसकी तरफ हमदर्दी बरसाती नजरों से देखते हुए उसने जेब में से 100 रुपए का एक नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। औरत ने लेने से इनकार किया तो उसे नरमी से समझाया कि बच्चे के लिए दूध ले लेना।
और नोट को उसने बच्चे की मुट्ठी में थमा दिया। वो एकदम से फूट फूट कर रो पड़ी। देखो भाई, 1 महीना होने को आ गया है ना? तुम्हारे आदमी का कुछ भी पता नहीं है। मतलब वो ब्लास्ट में खत्म हो गया होगा। तुम्हारा छोटा बच्चा है, उसकी परवरिश करने के लिए पैसा लगेगा, है ना? मातम करने से काम तो चलने वाला नहीं। वो किसी नर्सरी टीचर की तरह एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोल रहा था। मामला गर्मा गर्म है, सरकार अभी दयालु बन गई है। अभी जो मिलता है ले लो, टाइम निकल जाने के बाद सरकार भी भूल जाएगी कि उसने कोई वादा किया था, है ना? फिर चप्पल घिस जाएगी तुम्हारी, फिर भी कुछ नहीं मिलेगा, समझी ना? 2 दिन के बाद अपना इरादा बताना, मैं साहब को बोल के तुम्हारा सब काम आसान करा दूंगा, है ना? काला बाबू की है ना की तकरार औरत के दिमाग और दिल के दरमियान रफू का काम कर रही थी। वो खाली खाली नजरों से उस काले कलूटे आदमी का चेहरा तकती रही, जो उस लम्हे में उसे कोई फरिश्ता नजर आ रहा था। बच्चे ने 100 रुपए का नोट अपनी मुट्ठी में बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। खुदा कसम, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। काला बाबू ने उसकी नजरों की ताब न लाकर जल्दी से कहा, काम कराने के लिए थोड़ा बहुत तो खर्चा करना पड़ेगा ना, वो मैं दे दूंगा। तुमको जब मुआवजा मिलेगा तो बस मेरा ख्याल रखना, है ना? उसने बच्चे के गाल को थपथपाया, जिसने अपनी मुट्ठी में 100 रुपए का नोट बहुत मजबूती से पकड़ रखा था। फिर वो गुमसुम खड़ी औरत को देखकर मुस्कुराया। उसके गंदे कत्थई दांत नुमाया हो गए। औरत मुस्तकबिल के अंदेशों में घिरी वहीं खड़ी रही, जैसे उसके पैरों में कीलें ठुक गई हों। काला बाबू उसे सवालों और वसवसों के भंवर में धकेल कर लंबे डग भरता इंस्पेक्टर के कैबिन की जानिब बढ़ गया। अबीर गुलाल और जाफरानी परचम। वो एक बेकाबू जम्मे गफीर था जो चीख चीख कर नारे लगा रहा था। उनके हाथों में सैकड़ों साल पुराने जाफरानी परचम और माथे पर हजारों साल पुराना अबीर गुलाल पुता हुआ था। वो एक मटमैली काई जदा बुलंदो बाला गुंबदों वाली इमारत के इतराफ में ऐसे हल्का बना रहे थे जैसे सरकश पानी का रेला किसी चट्टान के गिर्द फैलता है और उसे धीरे धीरे अपने अंदर समो लेता है। जुनून की कुव्वत ने खाकी वर्दियों का घेरा किसी मजाहमत का मुकाबला किए बगैर तोड़ दिया था और यकबारगी चारों तरफ से कफ उड़ाती जाफरानी मौजें उठी थी और चट्टान की तरह कदीम इमारत रेत के भुरभुरे टीले की तरह बैठ गई थी। अब वहां न कोई तारीख बची थी, न जुग्राफियाई हदबंदी थी, न ही कानून की बालादस्ती थी। सिर्फ एक बेकाबू वहशी भीड़ थी जो कानून और कुदरत की तमाम पाबंदियों को तोड़ चुकी थी। अब सिर्फ गर्दो गुबार था जो नारों की तरह फैल रहा था। सूरज की लाली खून आलूद गीले कपड़े की तरह गहरे जाफरानी अंधेरे में घुल रही थी। अंधेरे में त्रिशूल, तलवारें, बर्छे और छुरे चमकते और खून के छींटे उड़ाते, इंसानी जिस्म की घुटी घुटी चीखों के साथ गिरते, औरतें बच्चे पनाह की तलाश में भागते, कोई तलवारों और बर्छियों पर रख लिया जाता तो किसी के कपड़े तार तार किए जाते। भूखे कुत्ते गलियों और सड़कों पर लाशों को और वहशी मर्द औरतों के नंगे बदनों को भंभोड़ रहे थे। दूर दूर तक कोई जाय पनाह नहीं थी और न ही कोई मुहाफिज था। टीवी सेट पर दिखाई गई सीडी खत्म हो गई थी, लेकिन उसका एक एक मंजर उनकी आंखों में किसी खौफनाक ख्वाब की तरह मुसलसल चल रहा था। कमरे पर एक मातमी सुकूत तारी था। ये खामोशी किसी सदमे की वजह से थी या फिल्म के बाद जहन में उठने वाले सवालात की वजह से, वो समझ नहीं पा रहा था। उस रोज किसी ने कोई बहस नहीं की थी। झबरी दाढ़ी वाले के होठों में सिगरेट दबे हुए गुस्से की तरह सुलग रही थी। उसने उनके तमतमाए चेहरों को अपनी नोकीली नजरों से खुरचते हुए उनके दिमाग तक अपना पैगाम मुंतकिल कर दिया था। इंसान के जून में इंसान बनकर रहने की सबसे पहली शर्त है कि अपनी कौम को एक कुंबा समझो और उन्हें तहफ्फुज और इंसाफ दिलाने के लिए जान देने और लेने से भी गुरेज मत करो। उस रात वो काफी देर तक जागता रहा था। बहुत देर तक करवटें बदलते रहने के बाद ही उसे नींद आई थी। नींद में उसने महसूस किया था कि बिस्तर में उसका जिस्म किसी से मस हो रहा है। उसने अंधेरे में टटोला, उसका हाथ किसी गीली और लजलजी शय से टकराया। वो घबराकर उठ बैठा और लपक कर सिरहाने रखे साइड लैंप को रोशन कर दिया। उसे ये देखकर सख्त ताज्जुब हुआ कि उसने जो चादर ओढ़ रखी थी वो किसी हियोले की शक्ल में उभरी हुई थी। उसने डरते डरते हाथ बढ़ाया और चादर को एक झटके से उलट दिया। बेसाख्ता उसके मुंह से चीख निकल गई। खून में लथपथ कोई शख्स अपनी दोनों हथेलियों को घुटनों में दबाए करवट लिए सिसक रहा था। उसने कांपते हुए उस अजनबी के कंधे को पकड़कर सीधा किया और उसका दिल धक से रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। शदीद जख्मी हालत में उसने खुद को सामने बिस्तर पर पड़ा हुआ देखा। हूबहू उसी की शक्लो सूरत, उसी जैसा कदो कामत। उसके जिस्म पर जख्मों के गहरे निशान थे,
जैसे किसी तेज धार वाले हथियार से उस पर वार किए गए हों। वो सिसकते हुए फुसफुसा रहा था, बचा लो मुझे, बचा लो, वो मुझे मार डालेंगे। वो खुद को इस हाल में देखकर खौफ से कांपने लगा। उसने देखा कि सीलिंग फैन रुक रहा है, छत गिर रही है, दीवारें ढह रही हैं और जमीन कपकपा रही है। सुबह उसने खुद को फर्श पर पड़ा पाया, सर में दर्द हो रहा था और आंखें जल रही थीं। दफतन उसे रात का वाकया याद आ गया और वो एकदम से उठकर खड़ा हो गया। उसकी नजरें बेड पर गड़ गईं और आंखें हैरत और अनजाने खौफ से उबल पड़ी। बिस्तर पर चादर बेतरतीब थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं था। जो रात में जख्मी हालत में बिस्तर पर पड़ा सिसक रहा था और बिस्तर की सफेद चादर एकदम बेदाग थी। झबरी दाढ़ी वाले ने उसकी कैफियत को बहुत तवज्जो से सुना था और पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ कहा था, ये ना तो कोई दिमागी खिलजान है और ना ही आसेब, ये तुम्हारी आगही है, और जो मातम गुसार तुम्हें दिखाई देते हैं वो तुम्हारा जमीर है। तुम्हारे बिस्तर पर जो जख्मी पड़ा था वो तुम्हारी रूह है। वो मुझसे क्या चाहते हैं? आखिर मैं क्या कर सकता हूँ? उसने लरसती हुई आवाज में पूछा। तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तुम एक अजीम मकसद के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करके एक नातमाम जिंदगी की आफाकी मुसर्रत हासिल कर सकते हो, जिसकी इब्तिदा कब्र ही से हो जाती है, जो शहीदों के लिए गुलजार हो जाती है। झबरी दाढ़ी वाले ने शफीक मुस्कुराहट से कहा था। वो जब अकीदत और एहतराम से झबरी दाढ़ी वाले से मुसाफा करके सड़क पर आया था तो उसने खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस किया था। वो अपने अंदर जबरदस्त किस्म की खुद एतमादी महसूस कर रहा था। उसे लगा था कि पैर जमीन से कुछ ऊपर पड़ रहे हैं। सड़क पर दौड़ती बसें, मोटरें किसी नुमाइशगाह में रखे खुदकार खिलौनों की तरह मालूम हो रही थीं। फुटपाथ पर चलने वाले लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स के बेजान किरदार जैसे लग रहे थे। ऊंचे स्काई स्क्रैपर्स सिगरेट की खाली डिब्बियों के ढेर मालूम हो रहे थे। उसने खुद को जिंदगी के इस अजीम मकसद के लिए तैयार कर लिया था, जो मौत के बाद एक आफाकी मुसर्रत और नातमाम जिंदगी अता करता है। भाई साहब और तुकाराम की मां। एटीएस के दफ्तर में पुरानी वजह की पतलून कमीज में मलबूस खशखशी दाढ़ी वाले मोहम्मर आदमी को इंस्पेक्टर और उसकी बगल में बैठे दो सब इंस्पेक्टर गहरी नजरों से घूर रहे थे, जो बार बार मुर्दा सर की तस्वीर से उस तस्वीर का मुवाजना कर रहा था जो वो अपने साथ लाया था। उसके हाथों में अनजाने खौफ और खदशे की वजह से राशा और आंखों में तजस्सुस था। यह शख्स कल भी एटीएस के दफ्तर आया था। वो कल जब जीनों की तरफ जा रहा था तब उसने देखा कि सामने की दीवार पर एक नोटिस बोर्ड के सामने कुछ लोग खड़े किसी नोटिस को बहुत गौर से देख रहे हैं। बोर्ड के करीब कोल्हापुरी साड़ी में एक लागर सी बूढ़ी औरत 6-7 साल की एक बच्ची के कंधे पर हाथ रखे खड़ी थी और रह रहकर नोटिस बोर्ड पढ़ रहे किसी न किसी शख्स से मराठी में किसी बात के लिए आजिजी करती, लेकिन उसकी बात पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा था। उस बुढ़िया की बेचारगी को देखकर खशखशी दाढ़ी वाला मुअम्मर आदमी ठिठक गया था। अचानक बुढ़िया की नजर उस पर पड़ी और वो लंगड़ाती हुई उसके करीब आई और उसने मराठी आमेज हिंदी में जो कुछ कहा उसका मतलब था कि वो अपने बेटे गणपत तुकाराम गायकवाड़ का नाम इस फहरिस्त में तलाश कर रही है। खशखशी दाढ़ी वाला सर हिलाता हुआ उसके साथ बोर्ड तक गया। उसे ये देखकर अजीब तरह के खौफ का एहसास हुआ कि वो बम धमाकों के महलूकीन और जख्मियों की लंबी फहरिस्त थी। उसने अपनी कमीज की जेब में से ऐनक निकाल कर पहनी और फहरिस्त को पढ़ने लगा। शिवराम शांताराम मोरे 40 साल, राम बचन यादव 53 साल, खातून बी अंसारी 67 साल, दिलीप इल्हास जोशी 45 साल, रीटा डिसोजा 18 साल, मोहम्मद अली हैदर अली पठान 36 साल, वसंत जाधव पवार 28 साल, तबस्सुम अयूब शेख 27 साल, बेबी शबाना मोहम्मद उस्मान 8 साल। वो धुंधलाती आंखों से पढ़ता गया। महलूकीन की फहरिस्त में 112 नंबर पर था गणपत तुकाराम गायकवाड़ 42 साल। उसने जैसे ही बूढ़ी औरत को नाम पढ़कर सुनाया वो जोर जोर से बैन करती हुई फर्श पर बैठ गई। वो अपना मुंह पीट रही थी और उसके साथ वाली बच्ची रोती हुई उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। बुढ़िया को विलाप करता हुआ देखकर उसका दिल भारी हो गया था। उसे एक अनजाने वहम ने जकड़ लिया था। वो वहां से वापस मुसाफिर खाने में लौट आया था। आज उसने इंस्पेक्टर चौहान से कल न आने की वजह साफ साफ बताई तो उसने कहा था, हम रोज ऐसा मातम देखते हैं, क्या करें, आपकी तरह वापस तो नहीं जा सकते, दिल को कड़ा करके अपनी ड्यूटी देते हैं। एटीएस की टीम पहले ही दोनों तस्वीरों को अपनी तफ्तीशी नजरों से देख चुकी थी। उनके सामने एक जिंदा नौजवान की मुस्कुराती तस्वीर थी
जो शायद किसी शनाख्ती कार्ड के लिए खिंचवाई गई थी, और दूसरी जानिब तन से जुदा एक वरमजदा सर की तस्वीर थी जिसके खदोखाल बुरी तरह से मजरूह थे। हाँ दरोगा साहब, तस्वीर बिल्कुल मेरे भाई जैसी तो नहीं है, लेकिन नाक नक्शा कुछ कुछ मिलता जुलता जरूर है। चेहरा इतना बिगड़ गया है कि पहचानना मुश्किल है। मेरी तो दुआ है कि वो मेरा भाई ना हो। कहते हुए उसकी आवाज कपकपा गई। हमारी भी दुआ है कि वो आपका भाई ना हो तो अच्छा है, क्योंकि हमारी जांच टीम को शक है कि यही वो टेररिस्ट था जिसने ट्रेन में बम रखा था। लेकिन ये सिर्फ शक है, इसकी अच्छी तरह से छानबीन होगी। इंस्पेक्टर की ये बात सुनकर उसके जिस्म में एक ठंडी लहर दौड़ गई थी और पेशानी पर पसीने के नन्हे कतरे उभर आए। छोटू दहशत पसंद? मुमकिन ही नहीं है। उसकी तरबियत जिस माहौल में हुई है उसमें तो किसी के बिगड़ने और बहकने का सवाल ही नहीं उठता है। वैसे भी छोटू झगड़ालू और गुस्सीला नहीं था कि किसी के बहकाने में आ जाए। जिस बच्चे ने कभी गुलैल से किसी चिड़िया तक को न मारा हो, वो दहशत पसंद कैसे बन सकता है? ये पुलिस है, इनका काम ही शक करना है। इनके बारे में मशहूर है ना कि वक्त पड़ने पर ये अपने बाप तक पर शक करते हैं। आपकी अपने भाई से आखिरी मुलाकात कब हुई थी? एक सब इंस्पेक्टर के सवाल ने उसे चौंका दिया। छोटू से मुलाकात तो 1 साल से नहीं हुई थी, लेकिन फोन पर बात जरूर होती थी। जिस रोज हादसा हुआ था, शायद 10-15 मिनट पहले उससे मेरी फोन पर बात हुई थी। उसके लिए हमने एक बहुत खूबसूरत लड़की देखी है, उसी के बारे में मैंने उसे फोन किया था। उसने क्या कहा था फोन पर? उसने कहा था कि अभी उसे कुछ बहुत जरूरी काम करने हैं, फिलहाल शादी के बारे में नहीं सोच सकता। कहते हुए बड़े भाई की आंखों में नमी आ गई। दारोगा साहब, क्या मैं उस सर को देख सकता हूँ? वो खुद को ये इत्मीनान दिलाने के लिए लावारिस सर को देखना चाहता था कि अपने छोटे भाई पर उसका एतमाद गलत नहीं है। वाई नॉट? इंस्पेक्टर ने कहा, और एक सब इंस्पेक्टर से हिरासत में लिए गए किसी मुश्तबा आदमी को दूसरी जीप में पुलिस गार्ड्स के साथ जेजे अस्पताल के मुर्दा घर लाने की हिदायत देकर उठ खड़ा हुआ। मुअम्मर आदमी इंस्पेक्टर के पीछे कैबिन से बाहर निकल आया और वो आंसू जो उसने इंस्पेक्टर से छुपा लिए थे, रुमाल से पोंछते हुए लकड़ी के जीनों की तरफ बढ़ गया। जब वो अपने कांपते पैरों को जमाता हुआ सीढ़ियां उतर रहा था तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। जीने के करीब की दीवार पर लगे नोटिस बोर्ड के सामने कुछ लोग खड़े किसी नोटिस को बहुत गौर से देख रहे हैं। वही कल वाली कोल्हापुरी बुढ़िया 6-7 साल की एक बच्ची के कंधे पर हाथ रखे खड़ी है और वो रह रहकर नोटिस बोर्ड पढ़ रहे किसी न किसी शख्स से मराठी में किसी बात के लिए आजिजी कर रही है, लेकिन आज भी उसकी बात पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। उसे लगा कि वो बुढ़िया अभी उसे देख लेगी और उसे कहेगी कि उसके बेटे गणपत तुकाराम गायकवाड़ का नाम इस फहरिस्त में तलाश कर दे। उसने घबराकर अपना चेहरा फेर लिया और तेजी से इमारत के बाहर निकल आया। वो जल्द अज जल्द वहां से निकल जाना चाहता था। उसे लग रहा था जैसे वो बुढ़िया अपनी पोती के सहारे लंगड़ाती हुई उसके पीछे पीछे दौड़ रही है। उसके सेल फोन की घंटी बजी थी और देर तक बजती रही थी, लेकिन वो एटीएस की टीम के साथ जीप की पिछली सीट पर बैठा छोटू के बारे में सोच रहा था। उसका मासूम चेहरा किसी तस्वीर की तरह नजरों में टंगा हुआ था। बचपन में माँ बाप की मोहब्बतों से महरूमी ने वैसे तो तमाम भाई बहनों को मुतासिर किया था, लेकिन सबसे छोटा होने की वजह से ये महरूमी छोटू के हिस्से में कुछ ज्यादा ही आई थी। शायद इसीलिए उसने कभी बचपन वाली शरारतें नहीं की। उसे पहली बार शदीद एहसास हो रहा था कि उसकी आमदनी इतनी कम थी कि वो अपने भाई बहनों को अच्छे लिबास और खिलौने नहीं दिला सका था, खास तौर पर छोटू को जो उनमें सबसे छोटा था। यह एहसास उसे अब इसलिए भी हो रहा था कि अब छोटू बहुत अच्छी तनख्वाह पा रहा था और पूरे घर की जरूरतों के लिए फिक्रमंद रहता था। वो अपनी 2 बियाहता बहनों और उनके बच्चों के लिए त्योहार के मौकों पर कपड़े, खिलौने और जूते बराबर भिजवाता था। वो जैसे ही पुलिस जीप में बैठा, सेल फोन फिर बज उठा। उसने चौंक कर पतलून की जेब में से सेल फोन निकालकर कान से लगाया। दूसरी जानिब बीवी थी। टीवी वाले बोल रहे हैं कि वो लावारिस सर आतंकवादी का हो सकता है। बीवी की आवाज में बेसब्री और खौफ की कपकपाहट थी। उसने खुद पर काबू रखते हुए कहा, तस्वीर में तो बहुत फर्क है। लाश का सर देखने पर पक्का हो जाएगा कि वो हमारा छोटू नहीं है। अच्छा, अब रखता हूँ, उसने दानिस्ता बुलंद आवाज में कहा था और फोन मुनक़ता कर दिया था। उसे खुद पर हैरत हुई कि वो इतने एतमाद के साथ झूठ कैसे बोल गया। वो नहीं चाहता था कि बीवी को ये बताकर सदमा पहुंचाए कि उस लावारिस सर की तस्वीर उसके भाई से बिल्कुल मुशाबह तो नहीं है, लेकिन उसकी खफीफ सी टेढ़ी नाक और ऊपरी होंठ वाला जख्म का वो निशान बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि छोटू का है। दुनियावी रिश्ते फरेब हैं।
जे अस्पताल का मुर्दा घर उतना ही पुराना था जितना कि ये अस्पताल। खशखशी दाढ़ी वाले को साथ लेकर एटीएस की टीम काले चश्मे वाले इंस्पेक्टर के साथ मुर्दा घर की वहशत में मुब्तला करने वाली इमारत में दाखिल हुए। उनके पीछे अस्पताल के दो मेहतर भी थे जो एक ट्रॉली स्ट्रेचर को धकेल रहे थे। ताफुन इस कदर था कि सबने नाक और मुंह पर रुमाल रख लिया था। एक कुशादा हॉल में से, जहां 3-4 लाशें पत्थर की मेजों पर अलिफ नंगी पड़ी हुई थी, गुजर कर वो महबूस हवा से बोझल बर्फ खाने में पहुंचे। सीलन जदा दीवारों वाले उस बड़े से सर्द कमरे में डीप फ्रीजर के कैबिनेट बने हुए थे, जिनकी मुख्तलिफ दराजों में नुक्ता इंजमात पर मुर्दों को महफूज रखा जाता था। मेहतर ने इंस्पेक्टर के इशारे पर एक कैबिनेट की दराज को घर्र की आवाज के साथ खींच लिया। खशखशी दाढ़ी वाले के सामने वही तस्वीर वाला सर था जिसकी मुंजमिद आंखें उसी पर मरकूज थीं। उसका दिल सीने में बहुत जोर से धड़का। खशखशी दाढ़ी वाला लाखों में अपने भाई को 7 पर्दों में भी पहचान सकता था। उसके सामने नेक तीनत और सआदतमंद छोटे भाई का सर था, जिसे देखते ही वो सदमे से कांप उठा। उसके सामने ऐसे शख्स का सर था जिसने मासूम लोगों की जानें लेने के लिए अपनी जान जाय कर दी थी। ओह, मैं अभी तक आलाइशों से भरी इस फानी दुनिया में पड़ा हुआ हूँ, दिमाग ने सोचा। लोग कहते हैं कि मौत एक अबदी नींद है। हैरत है, किसी ने इस तजर्बे से गुजरे बगैर ही कह दिया, जबकि हकीकत तो यह है कि मौत के बाद नींद ही खत्म हो जाती है। बस एक इंतजार रहता है, तवील इंतजार, अपनी निजात का। उसकी मुंजमिद आंखों में मंजर पिघल कर कुछ वाज़ेह हो गया। अगर उसके सर में दिल होता तो शायद बहुत जोर से धड़कता। उसके सामने भाई साहब खड़े थे। उनका चेहरा किसी बुझे हुए कोयले की तरह नजर आ रहा था। वो बहुत गौर से उसे देख रहे थे। उनका लरसता हुआ हाथ आगे बढ़ा था, फिर उन्होंने उसे पीछे खींच लिया था। वो सर हिला रहे थे, सदमे में, गुस्से में, पशेमानी में या इनकार में। गौर से देखो, ये वही आवाज थी जो वो कई बार सुन चुका था। नहीं दारोगा साहब, ये मेरा भाई नहीं है। उनकी आवाज जैसे हलक में फंसकर निकली थी। आर यू श्योर? इंस्पेक्टर की आवाज थी। जी, बहुत कतईयत के साथ भाई साहब ने कहा था और एकदम से घूमकर दरवाजे की तरफ चल पड़े थे। उनकी गर्दन और कंधे झुके हुए थे, जैसे हल का जुआ रखने पर बैल की गर्दन बोझ से झुक जाती है। वो फिर बदबू भरे अंधेरे में था। उसने जिंदगी के किसी लम्हे में यह तसव्वुर नहीं किया था कि बाप की तरह मोहब्बत करने वाले भाई साहब उसे इस तरह पहचानने से इनकार कर देंगे। इस अंधेरे में एक जुमला गूंज उठा था, दुनियावी रिश्ते फरेब हैं। अजीजो अकारिब जिंदगी में मोहब्बत का दम भरते हैं और मौत के बाद फरामोश कर देते हैं। कोई किसी के लिए जीता है, न किसी के लिए मरता है। उसे लगा था कि वो अब तक सचमुच रिश्तों के फरेब में मुब्तला था। शुक्र है कि अब वो इस फरेब से न सिर्फ निकल आया है, बल्कि इसे खत्म होता हुआ भी देख रहा है। उसने सोचा कि काश बहुत पहले वो इस फरेब से निकल आता और अपने अजीम मकसद के लिए जिंदगी को वक्फ कर देता। काश जिंदगी का इरफान अता करने वाला, पता नहीं चंद मिनटों, चंद घंटों या चंद सालों बाद अंधेरे में फिर उजाले की खिड़की खुल गई थी। इस बार गंदी दीवारों में से उभर कर कई लोग सामने आकर खड़े हो गए थे। उसकी नजर पहले वर्दी पोशों पर पड़ी। उनमें वही काले चश्मे वाला पुलिस अफसर आगे खड़ा था। दूसरे तमाम वर्दी पोश अदब से पीछे खड़े थे। फिर उनके दरमियान से सरतापा सफेद लिबास में मलबूस एक हियोला सामने आया। उसके दोनों हाथों में हथकड़ियां थीं। रोशनी से मानूस हो जाने पर आंखों ने जो देखा वो बेहद चौंकाने वाला था। सामने उसका मिसाली मर्दे कामिल खड़ा था। झबरी दाढ़ी उलझी हुई सी थी और उनके चेहरे पर खौफ और हिरासानी थी। मुसलसल जागते रहने की गहरी थकन ख्वाबनाक आंखों से मुतरशा हो रही थी। देखो और पहचानो इसको, ऐनक वाले अफसर ने सख्त तहक्कुमाना लहजे में उससे कहा। क्यों नहीं पहचानेंगे वो मुझे? वो दुनियादारों की तरह मौत से नहीं डरते। वो तो गाजी हैं जो अपनी कौम के लिए जान देने और जान लेने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। मेरा उनका खून का वो रिश्ता नहीं है जो किसी मादी जरूरत और लालच में तोड़ दिया जाए, जैसा कि भाई साहब ने किया। हमारा रिश्ता तो पुख्ता अकीदे, बेलचक नजरिए और अजीम मकसद के साथ मुंसलिक है। वो उसके बहुत करीब आकर कमर से झुक गए। उनकी झबरी दाढ़ी उसे अपनी आंखों में घुसती महसूस हुई। उसे लगा कि वो उसकी पेशानी को चूमने जा रहे हैं। उसने सोचा कि काश मैं जिंदगी का इरफान अता करने वाले इस शख्स से कह सकता कि आपकी इनायत से मैंने अपनी जिंदगी का अजीम मकसद हासिल कर लिया है। उन्होंने सीधे होते हुए अपने बाजू को उठाकर पेशानी का पसीना पोंछा
اور مسکرا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میں نہیں جانتا اس کو۔ ان کی آواز میں ہلکا سا لرزہ تھا۔ شاید انہوں نے مجھے نہیں پہچانا۔ ہاں، میرا چہرہ جو بگڑ گیا ہے۔ وہ مجھے پہچانتے تو ضرور فخر سے کہتے کہ ہاں، یہی ہے وہ نوجوان جس نے ذلت کی زندگی پر شہادت کو ترجیح دی۔ یہ وہ ہے جس نے اپنی پوری قوم کو اپنا کنبہ تصور کیا اور عظیم مقصد کے لیے قربان ہو گیا۔ ان کا جملہ اب بھی اس کے دماغ میں گونج رہا تھا، جیو تو غازی کی طرح اور مرو تو شہید کی طرح۔ جھوٹ مت بولو، تم جانتے ہو نا اس کو؟ انسپکٹر چوہان کا لہجہ کافی درست تھا۔ یہ سوسائڈ بامبر تمہاری آرگنائزیشن کا ممبر نہیں تھا؟ نہیں، یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں معصوموں کا قتل گناہ عظیم ہے اور خودکشی حرام ہے۔ انہوں نے اس کی مردہ آنکھوں کی طرف حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے دماغ میں بہت زور کا دھماکہ ہوا اور اس کے بھیجے کے چیتھڑے اڑ گئے اور کانوں میں گونجنے والی سیٹیاں بجنے لگیں اور آنکھوں میں اندھیرا کسی سیاہ پردے کی طرح گر پڑا اور سب کچھ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ آخری دیدار کے بعد نیم اندھیرے برف خانے میں وہ سبھی ڈیپ فریزر کی دراز کے سامنے اپنے منہ پر رومال رکھے کھڑے تھے۔ انسپکٹر چوہان نے ہمیشہ کی طرح کالا چشمہ پہن رکھا تھا۔ کالے کلوٹے بابو کا جبڑا آج کچھ بے چینی کے ساتھ پان اور سپاری کو کچل رہا تھا۔ مردہ گھر کا اٹینڈنٹ اور کلرک ہاتھوں میں فائل اور کچھ فارم لیے کھڑے تھے۔ ان کے پیچھے میلی ساڑی میں ڈری سہمی ہوئی عورت منہ پر پلو رکھے کھڑی تھی۔ انجانے خوف سے اس کا جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اس نے شاید کئی دنوں سے بالوں میں تیل کنگھا نہیں کیا تھا، لیکن اس کے ماتھے کی گول بندی بالکل تازہ لگ رہی تھی۔ البتہ آج اس کی مانگ سونی تھی۔ باہر سے کسی بچے کے رونے کی آواز متواتر آ رہی تھی۔ مہتر نے پوری قوت سے فریزر کی دراز کو کھینچ لیا۔ سامنے وہی لاوارث سر بے نور آنکھوں سے انہیں گھور رہا تھا۔ کالا بابو نے اپنی جیب میں سے پلاسٹک کی ایک بڑی سی پڑیا نکال کر عورت کی طرف بڑھا کر آنکھوں سے اشارہ کیا۔ عورت نے پڑیا میں سے ابیر گلال کو کانپتی مٹھی میں لے کر مردہ سر کے ماتھے پر پوت دیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اسے پرنام کیا۔ پھر وہ پتہ نہیں کس احساس کے تحت پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کالا بابو نے اپنی بغل میں دبا ہوا ایک کورا سفید کپڑا اسپتال کے مہتر کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے اپنے دستانے والے ہاتھ کو بڑھا کر سر کو اٹھایا اور ایک پولیتھین میں رکھ کر اسے سفید کپڑے میں خوب اچھی طرح سے لپیٹ دیا۔ مہتر نے سفید کپڑے کے اس گولے کو اتنے ہی احترام سے رکھا جیسے کہ کسی لاش کو اس کے متعلقین کے سامنے رکھا جاتا ہے، اور وہ اسٹریچر کو دھکیلتا ہوا دروازے کی طرف چل پڑا۔ سفید کپڑے میں لپٹا سر کسی گیند کی طرح ہل رہا تھا۔ مردہ گھر کے برف خانے سے باہر آتے ہی عورت نے جلدی سے اپنے روتے ہوئے بچے کو کانسٹیبل کی گود میں سے لے کر سینے سے لگا لیا۔ کالا بابو نے اپنی جیب میں سے 100 اور 50 کے نوٹ نکال کر وہاں موجود اسپتال اور مردہ گھر کے ملازمین کو بخشش دی۔ مردہ گھر کی عمارت سے باہر نکل کر وہ سب اس ٹیکسی کی طرف بڑھے جسے کالا بابو نے پہلے ہی سے ویٹنگ میں انگیج کر رکھا تھا۔ عورت اور کالا بابو ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ سفید کپڑے میں لپٹا سر عورت نے اپنی گود میں ایسے لے رکھا تھا جیسے وہ ایک بے جان سر نہ ہو، کوئی زندہ بم ہو۔ کریا کرم میں بالکل بھی دیر مت کرنا۔ سفید موٹے کپڑے اور پولیتھین میں ہونے کے باوجود اس نے سنا کہ انسپکٹر کسی کو تنبیہ کر رہا تھا۔ کالا بابو، دھیان رہے، یہ اب تیزی سے سڑنے لگے گا۔ خدا قسم صاحب، اتنی بدبو ہے کہ برداشت سے باہر ہے۔ ہم ادھر سے سیدھے دادر کے الیکٹرک شمشان جائیں گے۔ شمشان؟ وہ احتجاج میں پوری قوت سے چیخا، لیکن دھماکے کے بعد وہ خود بھی تو قوت گویائی سے قطعی محروم ہو چکا تھا۔ وہ اپنی بے آواز چیخ میں ایسا احتجاج کر رہا تھا جو فضا میں تیرتی حساس لہروں پر ہلکا سا ارتعاش بھی پیدا کرنے سے قاصر تھا۔ ٹیکسی چلنے سے پہلے عورت نے انسپکٹر چوہان کی طرف دیکھ کر ممنونیت سے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کی بغل میں بیٹھے کالا بابو کی بانچیں کھلی ہوئی تھی اور اس کے گندے کتھئی دانتوں میں دبی سگریٹ سلگ رہی تھی۔ انسپکٹر کو اچانک کچھ یاد آ گیا۔ اس نے جلدی سے ڈرائیور کو رکنے کا حکم دیا اور عورت سے کہا، ذرا کپڑا ہٹا کر اس کا چہرہ تو دکھاؤ۔ عورت نے منہ اور ناک پر پلو رکھ کر سفید کپڑا ہٹا کر پولیتھین میں رکھے سر کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر انسپکٹر چوہان کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے اپنا کالا چشمہ اتارا، منہ پر رومال رکھ کر ٹیکسی کی کھڑکی میں سر ڈال کر اس بدبو پھیلاتے بدحیت مردہ سر کو غور سے دیکھا اور بری طرح سے چونک پڑا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا، کیونکہ گرم موم کی طرح پگھلتے مردہ سر کی آنکھیں مچی ہوئی تھیں اور دونوں ہونٹ آپس میں سختی سے ایسے بھیجے ہوئے تھے جیسے وہ کسی ناقابل برداشت کرب کو اپنے جبڑوں میں دبانے کی کوشش کر رہا ہو۔